Hello dear students, today our topic is what? Double integral in polar coordinates. So you know about polar coordinates? Polar coordinates means what? Coordinate of a point is r and theta, and Cartesian xy, you know, just in the Cartesian form we draw frame like this, x-axis and y-axis, and here a point, if we take p x y, it can be represented like this. This is y, this is x, this distance is x, and any point in this plane can be represented by xy, and function related y is depending on x, so xy is point. So Cartesian form means xy is related. Okay, this is 2D plane. This is 2D plane. Clear? Now polar form. What is the polar form? In polar form only single line is used called initial line. Theta equals to 0. This is also called initial line. Equation theta equals to 0. And now this theta equals to pi. 90 degree, theta equals to pi by 2. This theta equals to 3 pi by 2. In this direction 270 degree. Okay? And in positive direction angles. Suppose here is point P, r theta. This distance is r. If this distance is r and if this angle is theta, then this point is represented by r theta. R is the distance of the point from pole in initial line. This is pole, OX, initial line, pole as origin. This polar coordinates. Polar coordinates. Polar coordinates. Okay, polar coordinates. Clear? Now, this point, anywhere you can take point. Point can be represented by these two quantity r and theta. Here we see that this is 90 degree. This line is perpendicular to this line. So this plane can be drawn also on this x-axis and y-axis. So if we draw this, that means if we take also its coordinate as r theta, and this will be the value of r, and this is theta. Then by using trigonometric ratios, we can write sin theta equals to y by r, cos theta equals to x by r by trigonometric ratios. So from here we see that x equals to r cos theta, y equals to r sin theta. This two equation contains x and y, r and theta also. That is Cartesian coordinate and polar coordinate both. This two equation is very useful for transforming equation
from Cartesian to polar and polar to Cartesian. And here by adding and squaring and adding, you can get also x square plus y square equals to r square. This is important result. So these results are useful for converting and for identifying whether a polar curve represent what in Cartesian form. Just transfer the equation from polar to Cartesian and you can see that whether it is circle, a straight line, parabola, ellipse. Okay, very easily, because you know about more than the polar form diagram. What is the behavior of the diagram in the Cartesian form? So we can convert Cartesian to polar, polar to Cartesian by using this transformation equation. Okay, so these equations are important. Okay, now our target is what? Double integrating polar coordinates. Okay. क्लियर है कि नहीं? हेलो, हाँ, ये रिलेशन कार्टेशियन टू पोलर करने में यूज करते हैं. नाउ आवर टारगेट इज व्हाट? डबल इंटीग्रल इन पोलर फॉर्म. डबल इंटीग्रल इन पोलर फॉर्म. So r theta will be there. In the previous class we have seen that the any region is either lies between two parallel lines parallel to y axis or parallel to x axis. कोई भी रीजन जो बनाते हैं वो रीजन दो पैरेलल लाइन के बीच में होता है, फिर स्ट्रिप लेते हैं. सो हियर आल्सो पोलर फॉर्म में भी क्या क्रिएट करते हैं यहाँ पर? ये रिलेशन ऑलवेज याद रखना है ना, एक्स वाई को ये सब चेक करने के लिए कि कार्टेशियन में ये इक्वेशन होता है, पोलर में क्या इक्वेशन होता है. तो पोलर फॉर्म में डबल इंटीग्रल करना है. पोलर फॉर्म में डबल इंटीग्रल अगर करना है तो इसके लिए डायग्राम बनाना है जस्ट लाइक कार्टेशियन फॉर्म. कार्टेशियन फॉर्म में दो लाइन के बीच में लाई करता है और वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं या तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते हैं. यहां पर कैसा स्ट्रिप लिया जाता है? रेडियल स्ट्रिप. व्हाट इज रेडियल स्ट्रिप? नाउ सी सपोज और फ्रेम इज लाइक दिस. This is initial line. Okay. This is polar form. Polar form के केस में ये केवल एक ही लाइन यूज होता है और कहीं भी पॉइंट्स हो. सो पॉइंट का डिस्टेंस r होता है, एंगल थीटा होता है. सपोज देयर इज रीजन बिकॉज पोलर फॉर्म के केस में जो फ्रेम होता है वो फ्रेम में ओनली सिंगल लाइन होता है. ये अंडरस्टूड है, ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है. ये थीटा इक्वल टू 0 है तो ये थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 है और ये थीटा इक्वल टू क्या है? पाई. और ये क्या होगा? थीटा इक्वल टू डायरेक्शन पे बेस करता है. ये डायरेक्शन क्या? पाई बाय 2. ये डायरेक्शन क्या? पाई. ये डायरेक्शन क्या? 2 पाई बाय 3. ये डायरेक्शन टोटल क्या? 2 पाई. बट अगर इस डायरेक्शन में आएंगे तो ये माइनस पाई बाय 2. थीटा इक्वल टू आल्सो यू कैन राइट माइनस पाई बाय 2. इफ इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव. टोटल डायरेक्शन में मेजर करेंगे थीटा इक्वल टू 3 पाई बाय 2 पाई. हाँ, 3 पाई बाय 2 भी होता है. क्लियर? नाउ ये हिडन है. फ्रेम ओनली दिस. नाउ सपोज देयर इज अ रीजन. अब 2 डायमेंशनल प्लेन में कार्टेशियन फॉर्म में हम दो लाइन के बीच में रीजन को रखते हैं, आइदर पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस. बट हियर एक लाइन ऐसा, दो रेडियल लाइन लेना है जिसके बीच में रीजन रहेगा. सपोज दिस इज रीजन, देन this theta equal to pi by 2. Now any line is denoted by what? Theta equal to something, because this is what? Theta equals to 0. This is theta equal to pi by 2.
Now maybe this is theta equals to theta 1. Suppose this radial line is moved to here like this, so this is theta 2. Suppose ये theta 1 से theta 2, two radial line are there. This our region lie between this two radial line. Now this is touching point, this is touching point. This region should be regular, means any parallel line to x-axis or y-axis intersect this region in 2 points, that is called regular region. Regular होना चाहिए, जान लो ये रीजन है, ये दो लाइन के बीच में है, इस रीजन को कवर करना है. जैसे 2 डायमेंशनल प्लेन में xy प्लेन में क्या करते हैं, कवर करने के लिए इस स्ट्रिप को ऐसे x एक्सिस के पैरेलल लेके y एक्सिस की तरफ बढ़ाते हैं. सिमिलरली y एक्सिस के पैरेलल लेके x एक्सिस के अकॉर्डिंग स्लाइड करते हैं. इसमें क्या करना है, एक स्ट्रिप लेना है, उसको ऐसे चलाना है, इस स्ट्रिप को ऐसे चलाना है, मूव करना है, रोटेट करना है अबाउट दिस लाइक, तो ये फिर इसको कवर करेगा. तो रेडियल स्ट्रिप लेना है यहाँ पर. रेडियल स्ट्रिप यू कैन टेक लाइक रेडियल स्ट्रिप लाइक दिस. दिस इज आवर स्ट्रिप. इतना पोर्शन नहीं है, ये पोर्शन है. नाउ इफ दिस स्ट्रिप moves from theta 1 to theta 2, that is this to this, and P always lie on this half portion, Q always lie on this half portion, then this region will be covered. Region कैसे कवर होगा समझ में आया? हेलो, रीजन कवर होना समझ में आया पोलर फॉर्म में? यस सर. बिकॉज कार्टेशियन फॉर्म में क्या वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते हैं और स्लाइड करते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग. यहाँ क्या करना है, रेडियल स्ट्रिप लेना है, उसको ऐसे स्लाइड ऐसे रोटेट करना है. सो ये थीटा 1 टू थीटा 2, यहाँ से थीटा 1 की लिमिट, थीटा की लिमिट थीटा 1 टू थीटा 2, एंड पी एंड क्यू यहाँ से. ये डिस्टेंस कौन सा मेजरमेंट का डिस्टेंस है, ये आर का, बिकॉज ये डिस्टेंस आर से मेजर होता है. सो ये यहाँ पर आर, यहाँ से लिमिट मिलेगा r1, आर का लिमिट r1 यहाँ से मिलेगा, r2 यहाँ से मिलेगा. सो r1 कहां से मिलेगा, p से. p कहां पर रहता है, इस कर्व में. q आल्सो इस कर्व में. क्लियर? सो यहां से r1 की लिमिट, यहां से r2, r की लिमिट r1 r2. सो इसमें दो चीज होता है, जैसे r थीटा उधर xy था, इधर r थीटा है. सो r की लिमिट इधर से मिलना है, थीटा की लिमिट इधर से मिलना है. सो रीजन विल कवर. इसमें भी इंटीग्रेशन इस टाइप का होता है, डबल इंटीग्रेशन. सपोज दिस इज द रीजन a, then double integral a f r theta, because r theta से related function है, and here dr and d theta. This is double integral in polar form. r means ये वैल्यू r का लिमिट, theta means theta 1 to theta 2. तो जनरली theta 1 theta 2 जो है कांस्टेंट लिमिट होता है, और r की जो वैल्यू है वो कर्व से फाइंड होता है, सो वेरिएबल लिमिट होता है. क्लियर? सो दिस इज डबल इंटीग्रल इन पोलर फॉर्म. नाउ टेल मी द r इक्वल्स टू a. सपोज r इक्वल्स टू a कांस्टेंट और r इक्वल्स टू 2. व्हाट रिप्रेजेंट दिस इन टू डायमेंशनल प्लेन इन पोलर फॉर्म? क्या रिप्रेजेंट करता है बताओ? एनीवन? r मीन्स व्हाट? जो r अभी पढ़ के आ रहे हैं पोलर फॉर्म क्या होता है? डिस्टेंस सर. डिस्टेंस. अभी जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन देख के आए थे ना, r इक्वल्स टू क्या होता था, r स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. देख के आए थे ना अभी? हाँ, तो इसको क्या लिख सकते हो, r स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर. r स्क्वायर मतलब क्या होता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर. r स्क्वायर की वैल्यू, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन था, r स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है, तो ये होता है. देखो अभी अपने कार्टेशियन में आ गया ये, और ये पोलर में था. पोलर में मतलब ये था ये, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है,
2D में क्या रिप्रेजेंट करता है पता है ना, सर्कल है। एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस कितना है ए रेडियस का सर्कल है। सिमिलरली ये भी ए रेडियस का सर्कल है। व्हाई? बिकॉज ये है इनिशियल लाइन और वो सब पॉइंट जिसका डिस्टेंस कितना है ए। तो ये जो सर्कल है ये डिस्टेंस का, ये आर थीटा, जो आर थीटा है ये डिस्टेंस ऑलवेज ए है, ऑलवेज ए डिस्टेंस है। ये तो सर्कल है, ये आर इक्वल्स टू ये क्या है, ये रेडियस का सर्कल है। सिमिलरली बिकॉज और एक चीज और है इसमें ना, बहुत सारे मैं बताया था उस दिन डायग्राम कुछ बनने वाला है, कुछ डायग्राम याद रखना है। पोलर में है 7-8 डायग्राम है और कार्टेशियन में भी कुछ है। ओके, सो अभी हमने क्या रिप्रेजेंट किया, आर इक्वल्स टू ए सर्कल, आर इक्वल्स टू ए साइन थीटा, आर इक्वल्स टू ए कॉस थीटा, ये सब सर्कल है। ये सब क्या है, सर्कल्स। इसको कार्टेशियन में चेंज करके वी कैन कन्वर्ट इट इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में अगर कन्वर्ट करोगे दिख जाएगा, ये ए रेडियस का सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है। फॉर एग्जांपल इस सर्कल को अगर कार्टेशियन में कन्वर्ट करके देखना है कि इसका रेडियस क्या है, सेंटर क्या है, सो आर से मल्टीप्लाई दिस बाय आर, सो क्या होगा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए आर कॉस थीटा। टेल मी आर कॉस थीटा मींस व्हाट इन कार्टेशियन फॉर्म? क्या होता है आर कॉस थीटा? एक्स होता है ना। ये अब चेंज कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू ए बाई 2 प्लस वाई माइनस 0 स्क्वायर इक्वल्स टू ए बाई 2 स्क्वायर। ये समझ में आया? जो लिखा हूं ये सब करते थे पहले, इसको ना कन्वर्ट कर रहा हूं, देख रहा हूं कि कैसा सर्कल है। ये वाला सर्कल है, ये वाला, ये दिस सर्कल इट कैन बी ट्रेस आल्सो। ट्रेसिंग अगर जानते हो तो इसको ट्रेस कर भी सकते हैं। एक ऐसा सर्कल बन गया, इस सर्कल का सेंटर क्या है, एच के, सेंटर a बाई 2 0, सेंटर रेडियस क्या है a बाई 2, सो a बाई 2 रेडियस है और a बाई 2 0 सेंटर है। सो दिस इज कॉस लिखा है, देखो कॉस। इसको अगर कार्टेशियन में हम बनाएं, इसको अगर हम कार्टेशियन में बनाएं तो क्या है, कार्टेशियन में बनाएंगे तो ऐसा वाला सर्कल बनेगा, जो यहां पर आएगा a बाई 2 और यहां पर आएगा ये डिस्टेंस a बाई 2, टोटल a। यही होना है कि नहीं? हेलो, ये बनेगा ना? अच्छा ये बताओ, आज वो जो मेरी जो वीडियो है वो मोशन ठीक है कि नहीं? मतलब ऐसा तो नहीं धीरे धीरे आ रहा है, स्लो आ रहा है? हेलो, मेरे कहने का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब मेरा जो मैं हिल रहा हूं ना तो ये बहुत स्लो हो रहा है, ऐसा तो नहीं है ना? क्यों? नहीं है। अरे भाई तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं जो हिल रहा हूँ ऐसा तो नहीं कि पता चला हिल रहा हूँ वो हिलते ही दिख रहा है हमेशा। नो सर। सब कुछ क्लियर है? जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? सब कुछ ठीक है ना? यस सर। हाँ अभी बताओ, आप देखो इस सर्कल का सेंटर तो ये हो गया ना, ये बाई 2 0, ये तो ये बाई 2 0 है, एक्स एक्सिस पे है, और ये टोटल डायमीटर कितना हो गया, डायमीटर ए हो गया। सो एक इसका डायमीटर ए है और सेंटर क्या हो जाएगा, कॉस अगर है तो a बाई 2 0, दिस इज सेंटर, a बाई 2 0, दिस सेंटर, दिस इज डायमीटर, मींस r इक्वल्स टू, सपोज अगर a दिया है r इक्वल्स टू 5 cos थीटा, दैट इज व्हाट, अगर ऐसा दिया है इसका मतलब डायमीटर 5 है, सर्कल है, सेंटर क्या है 5 बाई 2 0, मींस x एक्सिस पे लाई करेगा और टच करेगा किसको, y एक्सिस को। सिमिलर ये होता है, ये भी एक सर्कल है जिसका डायमीटर कितना है a है, और साइन होने के कारण ये y एक्सिस पे होगा,
ये किस पे होगा फिर? वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे ऐसा सर्कल होगा। हियर 0a/2, 0a/2 सेंटर होगा इसका। मीन्स साइन मीन्स वाई एक्सिस पे लाई करेगा, टच करेगा एक्स एक्सिस को। और ये डायमीटर, ये डायमीटर ये चेंज होता जाएगा तो क्या होगा? सर्कल चेंज होता जाएगा इस टाइप का, इस टाइप का। ये साइन के लिए और कॉस के लिए ऐसे इधर होता है, इधर। क्लियर हुआ? ये तीनों सर्कल के बारे में क्लियर है ना? ए रेडियस का सर्कल है, सेंटर ओरिजिन। ए डायमीटर का सर्कल है, वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस को टच करता है। ये डायमीटर का सर्कल है, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस को टच करता है। ओके, ये सर्कल है। और फिर याद, रिमेंबर r इक्वल्स टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। ये कौन सा डायग्राम होता है? याद है किसी को? पिछली बार बताया। एनीवन कैन यू गेस व्हाट इज द नेम ऑफ दिस डायग्राम? तो सर्कल के बारे में बताया अभी। अब ये सामने जो लिखा हुआ ये कौन सा डायग्राम के लिए होता है? व्हाट रिप्रेजेंट दिस एंड दिस? इट्स ट्रेसिंग इज नोन एज, स्पेशल नेम इज देयर। Just like four in Cartesian form, 4 parabolas, right-handed, left-handed, upward, downward, etc. ये क्या होता है? कार्डोइड है, कार्डोइड। याद आया? a 1 minus cos theta, r equals to a 1 plus sin theta, r equals to a 1 minus sin theta. These 4 are known as कार्डोइड्स। राइट हैंडेड एक ऐसा पैराबोला होता है, एक ऐसा पैराबोला होता है, एक ऐसा होता है और एक ऐसा होता है। ये सबको पता है कि नहीं? कार्टेशियन फॉर्म में ऐसा पैराबोला होता है। ये क्या होता है? y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x, x स्क्वायर इक्वल टू y 4y, x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4y। राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, ये होता है। सिमिलर है ना इन पोलर फॉर्म, कार्डोइड्स। कार्डोइड मीन्स हार्ट शेप फिगर। ये डायग्राम होता है इसका, इसी टाइप का है। कॉस मीन्स इनिशियल लाइन पे होना है, साइन मीन्स 90 डिग्री वाले लाइन मीन्स वाई एक्सिस की लाइन पे होना है। तो इसका डायग्राम क्या होगा? इसका फिर साउंड डिस्टर्ब कर रहा है, माइक ठीक से रखना है तुम लोग, है ना? ये डायग्राम याद है? अभी एक ऐसा डायग्राम था, ऐसा डायग्राम देखे हो? हेलो, ये ओरिजिन है, दिस इज इनिशियल लाइन, ओके। या थीटा इक्वल्स टू 0, and this distance is what? 2a. This distance is what? a. ये जो डायग्राम है पोलर फॉर्म में, this line theta equal to 0, this line theta equals to pi by 2, and this line theta equals to pi, and similarly ये डायग्राम है, फर्स्ट वाला है ये 1 plus cos theta। माइनस वाला क्या होगा? 1 माइनस वाला वो भी cos पे और इस डायरेक्शन में होगा, इधर होगा, इधर। क्लियर हुआ? सेम मेजरमेंट 2a a a। एंड साइन में क्या होगा? इस तरफ, मीन्स ऐसा, ये थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2। ये कौन सा डायग्राम है? ये वाला। और नीचे तरफ बनेगा तो ये कौन सा डायग्राम बनेगा? ये माइनस वाला। These are the cardoids, same distance 2a, 2a, a, and theta equal to 0 up to 90 and so on। समझ में आया कार्डोइड का डायग्राम? हेलो,
कार्डोइड का डायग्राम समझ में आ गया? ओके। इसके बाद एक डायग्राम और बता रहा हूं, नोट डाउन दिस बिकॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी ना फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, इंटीग्रेशन को सॉल्व नहीं करूंगा पूरा, जस्ट फिट करके रख दूंगा, बता दूंगा ये करना है और करना है तुम लोग को, बिकॉज ऑफ इंटीग्रेशन में टाइम लगेगा ना, नहीं तो फिर हो नहीं पाएगा। हम कम से कम 5-6 क्वेश्चन लिया हूं, आज करना है हमको। ओके, एक डायग्राम और है, लेमनिस कैट। लेमनिस कैट, लेमनिस कैट बोलते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। ओके, कॉस में भी होता है, साइन में भी होता है, बट ये कॉस वाला डायग्राम ज्यादा यूज होता है। क्लियर? इसका जो डायग्राम है, जस्ट नोट डाउन, दिस इज व्हाट x मींस थीटा इक्वल्स टू 0, और ये क्लियर है, ये थीटा इक्वल टू पाई बाय 2, ये थीटा इक्वल टू पाई। इट्स डायग्राम इज वेरी सिंपल, ऐसे बना लेना है। दिस इज थीटा इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 4, थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4, पाई बाई 4, एंड डायग्राम इज लाइक दिस। क्लियर समझ में आया? डायग्राम, ऐसा भी डायग्राम देखे होगे तुम लोग, क्यों? यस सर। 7-8 डायग्राम है, वो सब नोट डाउन करके रखना है। ये दिस कॉल्ड लेमनिस कैट। ये कॉस है तो इस लाइन पे, साइन है तो इधर। क्लियर? इस डायग्राम का भी अब हम यूज करेंगे। ये डिस्टेंस क्या होता है? ये डिस्टेंस ए होता है, और यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0, ये थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, ये थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, ये थीटा इक्वल टू पाई, एंड सो ऑन। क्लियर? ये एक डायग्राम है लेमनिस कैट, इसको भी याद रखना। एक डायग्राम और होता है इससे रिलेटेड, बुक में जहां भी देखोगे ना, कॉस के जगह क्या लिखा रहेगा? साइन। उसको भी देखना डायग्राम कैसा होता है। क्लियर? सो ये सब ट्रेसिंग से होता है, तो स्पेशल डायग्राम है, दे आर वेरी वेरी यूजफुल। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है एग्जाम में जनरली। तो लेमनिस कैट में एक कॉस वाला है और एक साइन वाला भी होता है। आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर साइन 2 थीटा। इसका भी डायग्राम कैसा होता है नोट डाउन करना बुक से ना। सो नाउ वी टेक क्वेश्चंस फ्रॉम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन, दिख रहा है फर्स्ट क्वेश्चन? हेलो, चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? डबल इंटीग्रल, और कोई ना कोई रीड करो फटाफट, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? एनीवन? कोई भी एक्टिव नहीं हो तुम लोग, है ना? क्या लिखा है? नहीं दिख रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन, क्या है? क्या लिखा है? Evaluate double integral r sin theta dr d theta over the area of cardioid r equal to a 1 plus cos theta above the initial line. गुड। एक्टिव रहना है, जो भी क्वेश्चन है कोई ना कोई है, फट से बता देना है। तो हमको लगता है कि हम पढ़ा रहे हैं, तुम लोग देख रहे हो, समझ रहे हो। ओके, क्वेश्चन हो गया। अब अभी जो कार्डोइड बनाया था उसी का तो डायग्राम बनाना है, और इनिशियल लाइन के ऊपर वाले पार्ट में इंटीग्रेट करना है इस इंटीग्रेशन को। ओके, सो जस्ट ड्रॉ द डायग्राम। ओनली अपर पार्ट को लेना है, लोअर पार्ट नहीं लेना है। अबव द इनिशियल लाइन बोला है ना। डायग्राम तो टोटल ये है, टोटल डायग्राम ये, बट हमको केवल अपर पार्ट को लेना है। सॉल्यूशन, consider the following
डायग्राम। ओके, अब हमको क्या करना है, इसमें इंटीग्रल की लिमिट निकालना है। ये है हमारा रीजन। रीजन, व्हाट इज द रीजन? दिस पार्ट इज द रीजन। अपर पार्ट, ये पूरा पार्ट को हमको लेना है। ओवर दिस रीजन वी हैव टू इंटीग्रेट। तो पोलर फॉर्म में कैसा स्ट्रिप लेते हैं? कैसे स्ट्रिप लेते हैं पोलर फॉर्म में? रेडियल स्ट्रिप। सो टेक दिस OP is radial strip, or region is what? Region is O, A, B, O, A, B, O. This is our region. इस region में radial strip लिया। Here theta equals to 0. Here theta equals to pi by 2. Here theta equals to pi. So this region can be covered by this radial strip by rotating it in the positive direction from theta equal to 0 to theta equal to pi. इसको अगर यहां से ऐसे करके यहां तक घुमा ले तो ये कवर हो जाएगा रीजन। सो लिमिट विल बी व्हाट? फर्स्ट लिमिट थीटा इक्वल टू 0, 0 से चलकर कहां तक जाना है? पाई तक। थीटा की लिमिट 0 टू पाई। आर की वैल्यू at this plus r equals to 0, at this plus condition is that p will lie always on this curve. This curve means what? This curve means r square equals to a square cos 2 theta. So r equals to 0 to r. R means from here. R equals to a root cos 2 theta. Plus and minus. Plus sign for upper, lower sign for minus sign for lower. Okay. So r 0 to a root cos 2 theta. The radial strip OP will cover the region of integration. So we get बताओ क्या होगा? r sin थीटा है और dr d थीटा है। यहां पर थीटा की लिमिट क्लियर है। थीटा की लिमिट 0 टू पाई, कांस्टेंट लिमिट को यहां रखना है। r का लिमिट वेरिएबल होता है। सो क्या हो जाएगा? r का लिमिट 0 टू a रूट cos 2 थीटा। क्लियर? अरे ये दिस इज नॉट, दिस इज लेमनिस कट ना। ये इक्वेशन ऑफ दिस इज व्हाट? ये 1 प्लस cos थीटा। देखो तुम लोग क्या सीरियसली पढ़ नहीं रहे, उसको बताना चाहिए था ना। क्या लिख दिया था? लेमनिस कट का इक्वेशन लिख दिया था। सो r इक्वल्स टू ये 1 प्लस cos थीटा। सो क्या हो जाएगा r की वैल्यू? ये 1 प्लस cos थीटा। अभी क्या लिखना है यहां पर बताओ? क्वेश्चन में तो दिख रहा है ना, इंटीग्रल क्या है? r sin थीटा dr d थीटा ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थीटा की लिमिट क्या हुआ? 0 टू पाई। ये डायग्राम किसका था? कार्डोइड का था। वो मैं लिख दिया था लेमनिस कट का इक्वेशन। बताना चाहिए था ना किसी को। ध्यान से पढ़ना है। ओके, r equal to 1 plus cos theta, 0 to r. r means from this curve. Curve means this. r equals to 1 plus cos theta. So r की लिमिट क्या हुआ? 0 to 1 plus cos theta. 0 to 1 plus cos theta. Now ये थीटा मीन्स किसका लिमिट है? थीटा मीन्स जैसे x होता है तो y का लिमिट, y होता है तो x का लिमिट, थीटा है मतलब r का लिमिट है। सो dr d थीटा, ये लिमिट आ गया। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस इंटीग्रल। क्या टेक्निक है? सेम टेक्निक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, विद रिस्पेक्ट टू r, बिकॉज़ दिस इज लिमिट ऑफ r। सो r के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होना है। ओके, तो 0 टू पाई sin थीटा हियर एंड इंटीग्रेट किसके रेस्पेक्ट में होना है? 0 टू a 1 प्लस cos थीटा r
डी आर डी थीटा, ऐसे लिखना पड़ेगा ना। आर के रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करेंगे, सो क्या बन जाएगा ये 0 to पाई साइन थीटा, आर मीन्स व्हाट, क्या होना है इंटीग्रेशन, आर स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगना 0 to ये 1 प्लस cos थीटा, 0 to 1 plus a 1 plus cos theta and d theta. After applying the limit 0 to pi sin theta, यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 कांस्टेंट है, so we can write like 1/2 r square a square 1 plus cos theta square minus 1 plus cos theta square minus 0 डी थीटा। क्लियर है। आर इक्वल्स टू, पहले ये टोटल वैल्यू लिखा ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा स्क्वायर माइनस 0, आर इक्वल टू 0 दिस। नाउ इक्वल इंटीग्रेट इट, क्या हो जाएगा वैल्यू बताओ जल्दी, बहुत सिंपल है ये। अब थीटा का रेस्पेक्ट इंटीग्रेट होना है, नोट डाउन, इंटीग्रेशन पता है ना, इसको अगर हम t ले लेंगे 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू t, देन माइनस साइन थीटा डी थीटा इक्वल्स टू dt, सो माइनस dt हो जाएगा ये, और ये क्या बन जाएगा, क्या बनेगा t स्क्वायर t क्यू बाई 3 माइनस t क्यू बाई 3, minus t cube by 3 means t means what, 1 plus cos theta. So you can put the limit minus 1 plus cos theta cube by 3 limit 0 to pi. Clear? ये होना है ना इसकी वैल्यू, इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट किया और इंटीग्रेशन को रख दिया यहां पर। ओके, क्या होना है वैल्यू बताओ। क्या वैल्यू होना है, cos पाई क्या होता है, cos पाई क्या होता है, पाई रखेंगे थीटा की जगह पे, cos पाई क्या होता है, व्हाट इज cos पाई, माइनस 1 सर बाहर में ए स्क्वायर नहीं होगा, सर ए स्क्वायर बाहर में ए स्क्वायर नहीं होगा, ए स्क्वायर भी है ना यहाँ पर, ओके ए स्क्वायर, गुड ए स्क्वायर। नाउ लिमिट अप्लाई करेंगे ना, पाई थीटा इक्वल टू पाई cos पाई माइनस 1 1 0 0 cos 0 1 2 2 2 by 3 2 cube 8 2 cube means 8 by 3 minus 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 plus, final answer is what, 4a square by 3, 4a square by 3। क्लियर, ओके ना, यस सर, आंसर आ गया 4a स्क्वायर बाई 3। ओके गुड, यस सर। तो ये अच्छा लगा, अभी कि क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बट स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, डायग्राम बनाओ, स्टेप लो, लिमिट आएगा उसके बाद, ओके ना, क्लियर। नाउ सेकंड क्वेश्चन, एक सेकंड क्वेश्चन है, इसमें लिख रहा हूं, एनी ऑफ यू जस्ट रीड इट, ओके। अब आ रहा है सेकंड क्वेश्चन, ओके। अब सब सेकंड क्वेश्चन को रीड करो, कोई ना कोई रीड करो जल्दी। Evaluate double integral x cube dr d theta over the area bounded between the circle r equal to 2 cos theta and r equal to 4 cos theta। अभी हमने बताया था ना, r इक्वल्स टू a cos थीटा सर्कल होता है और r इक्वल्स टू a sin थीटा सर्कल होता है, उसी टाइप का सर्कल है ये। cos थीटा मींस x एक्सिस पे बनेगा सर्कल, y एक्सिस को टच करेगा मींस 90 डिग्री वाले लाइन को, क्लियर। एंड इंटीग्रेशन किसका करना है, r क्यूब x, नॉट x क्यूब, r क्यूब, ओके। सो कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम आल्सो हियर, क्वेश्चन तो दिख रहा है सबको ना, हमको डायग्राम बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द डायग्राम
पोलर फॉर्म में डायग्राम कैसे होता है? ओनली इनिशियल लाइन पे होता है, बट इट इज अंडरस्टूड दैट दिस इज थीटा इक्वल्स टू पाई, दिस इज थीटा इक्वल्स टू 0, दिस इज theta equals to pi by 2. Now this is theta equals to minus pi by 2. हम इस डायरेक्शन में मेजरमेंट को बोल रहे हैं माइनस पाई बाई 2। यहां से ये डायरेक्शन, यहां से इधर डायरेक्शन देंगे तो माइनस पाई बाई 2। नाउ सर्कल, यह सर्कल कौन सा दिया है? r इक्वल टू 2 cos थीटा। ये अगर 2 है ये, और सपोज ये 4, ये 4 हो जाएगा। ओके, ये तो थीटा इक्वल्स टू 0, r इक्वल्स टू 2 cos थीटा मींस डायमीटर 2 एंड x cos थीटा, सो इसी एक्सिस पे बनना है और इसको टच करेगा। सो वन सर्कल इज व्हाट? दिस इज फर्स्ट सर्कल। Second circle will be like this. बना डायग्राम बना कि नहीं? हेलो, Yes sir. Yes, Yes sir. sir. ये क्या बना? 2 0 और ये क्या बना? 4 0। 4 0. ओके, दोनों सर्कल बन गए, दो सर्कल था। बिटवीन द सर्कल, बिटवीन द सर्कल मीन्स आवर पोर्शन इज व्हाट? दिस पोर्शन, दिस इज आवर रीजन ऑफ इंटीग्रेशन between these two circles. This is r equals to 2 cos theta. This is r equals to 4 cos theta. ये अंदर वाला सर्कल जो है r equal to 2 cos theta है, ये बाहर वाला सर्कल जो है r equal to 4 cos theta है, और this is the reason. Now our radial strip we will take. रेडियल स्ट्रिप लेंगे तो बताओ थीटा की लिमिट क्या होना है और r का लिमिट क्या होना है to cover this region. Okay, so tell me the radial strip OP will cover the region of integration. क्या होना है बताओ? We get इंटीग्रल एक आर क्यूब, इंटीग्रेशन आर क्यूब है ना, आर क्यूब डी आर डी थीटा। ओके, क्या होना है लिमिट बताओ? कैसे रेडियल स्ट्रिप लेना है? ओ नॉट ओ पी, पी क्यू, हियर यू कैन राइट पी क्यू, ऐसा लेंगे ना रेडियल स्ट्रिप। This is PQ. This is PQ. See, radial strip PQ. This strip will move from here to like this. Total. This. ये स्ट्रिप जो है यहां से चल के ऐसे घूमते हुए यहां तक आएगा, क्योंकि रीजन में ये वाला पार्ट भी है, ये वाला पार्ट भी है। सो ये वाला स्ट्रिप अगर यहां से चल के, स्ट्रिप का साइज यहाँ इतना है, यहाँ छोटा, यहाँ छोटा, ये स्ट्रिप जब यहाँ आएगा तो इतना छोटा हो जाएगा, बिकॉज वी हैव कंडीशन P ऑलवेज लाई ऑन दिस सर्कल, Q ऑलवेज लाई ऑन दिस सर्कल। सो स्ट्रिप मूव करेगा यहाँ से यहाँ तक, तो थीटा की वैल्यू क्या होगा? डायरेक्शन तो ऐसे ले रहे हैं ना, सो यहाँ से डायरेक्शन लेंगे अगर इस डायरेक्शन में, ये नेगेटिव डायरेक्शन हो गया,
सो ये 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक तो 90 डिग्री है, बट जब डायरेक्शन हम इधर लेते हैं तो माइनस पाई बाई 2 टू, सो माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2, ठीक है, ओके, माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2, क्लियर। नाउ वैल्यू ऑफ r, so at p at q, p means on this circle, q means on this circle, so total लिख देना है 2 cos theta to 4 cos theta, क्लियर है ना। लिमिट निकालना, यस सर, p q r की लिमिट निकला और थीटा का लिमिट निकला। नाउ सॉल्व इट, थीटा मींस r के रेस्पेक्ट में, सो dr r cube means what, r power 4 by 4, apply the limit 2 cos theta 4 cos theta, here minus pi by 2 to pi by 2 and here d theta. Now apply the limit, so 1 by 4 you can take outside, 1 by 4 minus pi by 2 to pi by 2, 1 by 4 बाहर है, so r power 4 power 4 because 4 cos theta will be there, so 4 power 4 means 256, 256 cos power 4 theta minus 2 power 4 means 16 cos power 4 theta d theta. Now integrate this, 256 same thing, so 256 minus 16 240, 240 divided by 1 by 4 60 and limit minus pi by 2 to pi by 2 cos power 4 theta d theta. क्या रिमेंबर वालिस फॉर्मूला, लास्ट टाइम वालिस फॉर्मूला भी पढ़े थे, cos का पावर sin का पावर 0 to pi by 2 लिमिट अगर है तो डायरेक्टली यू कैन राइट, सो हियर बट minus pi by 2 to pi by 2 minus a to a, if this function is even then 2 times of 0 to a, ये प्रॉपर्टी होता है ना डेफिनेट इंटीग्रल का, वो प्रॉपर्टी यहाँ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 to pi by 2, यहाँ पर सामने 2 आ जाएगा और ये इवन फंक्शन है, cos तो इवन ही होता है, so we can write this 60 into 2 0 to pi by 2 cos power 4 theta d theta. Now you can use Wallis formula, okay. (120) into Wallis formula, you know Wallis formula, even power cos or sin, so even means pi by 2 and 4, so 1 2 3 4, by this is complete well by using Wallis formula, so this, so you can calculate it. Now what will be the value? Final value will be what? Just tell me. क्या होगा वैल्यू, क्या होगा? pi by 2. 45 pi by 2. इस इंटीग्रल का वैल्यू कौन से मेथड से लिखा? वालिस फॉर्मूला, यूजिंग वालिस फॉर्मूला, ओके, वालिस फॉर्मूला यूज किया, क्लियर, रिजल्ट. So in this way you can find the value of double integral in polar coordinates. There is one more questions, just इंटीग्रेशन को सॉल्व नहीं करूंगा, इसका आंसर निकालो ना, मतलब डायग्राम बना लेते हैं और समझ लेते हैं क्या होगा लिमिट. ओके, सो सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन,
सबको दिख रहा है थर्ड क्वेश्चन? हेलो, यस सर। चलो कोई और रीड करो। अभी लास्ट दोनों टाइम कौन रीड किया है? क्यों, क्या नाम है? Evaluate double integral. चलो नाम क्या बताओ तुम, जो एक ही जन रीड कर रहे हो बार बार? Anish. अनिश बोल रहे हो ना? Yes, अच्छी sir. अच्छी बात है। हाँ चलो रीड करो पहले। Evaluate double integral r dr d theta upon root over a square plus r square over one loop of the लेमनिस क्या? Lemniscate आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस square थीटा। equal to a square cos 2 theta. ओके, अभी लेमनिस कट का डायग्राम बताया था ना अभी हमने, वही डायग्राम यूज करना है, एक लूप पे इंटीग्रेशन करना है। ओके, सो सी डायग्राम, कुछ डायग्राम है बताया था ना पहले, 30 डायग्राम होगा टोटल ऑल ओवर। ओके, जो एग्जाम में जनरली आता है। सो इतने डायग्राम को ना, एक डायग्राम के लिए अलग से ना एक वीडियो बनाऊंगा, मैं भेजूंगा अभी बाद में, देखना तुम लोग। ओके, बट यहाँ पर ये इस डायग्राम को देखते हैं अब, दिस बिकॉज दिस इज पोलर फॉर्म, सो ऑलवेज सपोज दिस थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू पाई, मीन्स 180 डिग्री एंगल, दिस इज थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2, थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2। नाउ डायग्राम कैसे बनना है, लेमनिस कट का मैं बताया था, ये बीच में से लाइन लेना है, ये लाइन बनाना है एक, और एक ये लाइन बनाना है। दिस इज थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4, दिस इज थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4। पाई बाई 4 मीन्स एंगल 0 to this पाई बाई 4, this 45 डिग्री, this पाई बाई 4 नेगेटिव डायरेक्शन, सो माइनस पाई बाई 4। डायग्राम इस लेमनिस कट के लिए ए स्क्वायर, ये डिस्टेंस पे वैल्यू लिया जाता है, ये डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस बोथ साइड सेम, वन लूप, बिकॉज देयर टू लूप आर देयर, एक ये और सेम लूप इधर भी बनता है, इसीलिए बोला कि दो में से एक, वन लूप, बोथ लूप आर सेम इन एरिया, सो दो में से किसी भी एक लूप पे इंटीग्रेशन करना है। सो यू कैन टेक दिस लूप, दिस इज A0, अगर कार्टेशियन फॉर्म कोऑर्डिनेट देखें तो A0, this distance is A, this is pi by 4, this is minus pi by 4, so from here over this loop, on loop is this, okay, ये origin है A B, you can write C also, O C A B O, this is one loop, okay, on this loop to cover this region of integration, to cover this region, so we take same process एकदम, radial strip OP, ओके, इसी टाइप से यहाँ पर लिखना है ना, OP। अब बता दो इंटीग्रल की लिमिट क्या होना है, r dr d थीटा ना, r dr d थीटा upon root over a square plus r square, okay, so by taking this OP strip, radial strip, what will be the limit of theta, क्या होगा, थीटा का लिमिट क्या होना है, टेल मी, थीटा का लिमिट, हाँ, माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4, बिकॉज टू कवर दिस रीजन, यहां से यहां तक चलना है, एंड लिमिट ऑफ आर ओपी स्ट्रीप, सो ओ यहां से एक आर की वैल्यू निकलेगा, एक पी से आर की वैल्यू निकलेगा, पी से आर की वैल्यू निकालने का मतलब ये जो कर्व है आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर
cos 2 थीटा, यहां से निकलेगा। ओके, सो व्हाट विल बी द लिमिट ऑफ r, क्या लिखना है? रूट ओवर a स्क्वायर cos 2 थीटा। लोअर लिमिट 0 टू स्ट्रिप जब ऐसे रोटेट करेगा हमेशा तो यहाँ पर 0 है, p जो है इस कर्व पे रहेगा, कर्व मतलब वो इक्वेशन। तो r इक्वल टू 0 टू a रूट cos 2 थीटा, दिस आर द लिमिट। ओके, स्ट्रिप से ये लिमिट आ गया। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, फास्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा। -π/4 टू π/4, बस टेक्निक बताओ, कोई बता सकते हो टेक्निक क्या होना है? r dr अपॉन a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, इसी का इंटीग्रेशन तो पहले होना है। जीरो टू a रूट cos 2 theta, 3 theta, because this limit of r, so first of all integrate with respect to r dr by root a square plus r square। इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होना है? अगर रूट के अंदर को हम t ले ले तो क्या मिलेगा? 2r dr equals to dt, r dr equals to dt by 2, and this is what? t पावर हाफ, ऊपर जाएगा तो माइनस हाफ, t पावर माइनस हाफ dt by 2, t पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1, t पावर हाफ बाई हाफ इंटू 2, सो t पावर हाफ, दिस पावर हाफ। सबको समझ में आया? ये इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होना है? अगेन, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होना है? क्लियर है? इसका ए इंटीग्रल की वैल्यू होगा कि नहीं? होगा सर। आगे अगर हम ऐसा इंटीग्रेशन ले ले x dx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट dx, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। सो क्या होगा? इसको t ले लेंगे तो 2s dx इक्वल टू 2s dx इक्वल्स टू dt, तो x dx इक्वल टू dt बाई 2, सो ये जो हो जाएगा dt बाई 2, और ये हो जाएगा t पावर हाफ, t पर नीचे हाफ तो t पावर ऊपर जाएगा तो t पावर माइनस हाफ। इसका इंटीग्रेशन करना है, t पावर माइनस हाफ प्लस 1 मींस t पावर हाफ, तो t पावर हाफ अपॉन हाफ, ये हाफ कैंसिल, t पावर हाफ मींस व्हाट? t मींस जो अंदर था वही वाला ये, सो t पावर हाफ मींस a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पावर हाफ। सो दिस इज द इंटीग्रेशन। नाउ अप्लाई द लिमिट। ओके, सो ये लिमिट अप्लाई करेंगे, ये सब डायरेक्ट कर लेना है छोटे छोटे चीज पे, है ना। सो यहाँ पर क्या होना है? अभी लिमिट लगाएंगे तो -π/4 टू π/4 क्या होना है? लिमिट लगाना है, r के प्लस पे रखना है, ये रूट cos 2 थीटा फर्स्ट टाइम, सो a स्क्वायर प्लस r के प्लस पे रखना है, a स्क्वायर cos 2 थीटा माइनस इन प्लेस ऑफ r पुट 0, a स्क्वायर पावर हाफ, इसका पावर भी हाफ है, माइनस a स्क्वायर का प्लस 0 का पावर हाफ। दिस इज द लिमिट। ओके, लिमिट अप्लाई किया, r के प्लस पे पहले ये रखा, फिर r के प्लस पे 0 रखा। सो नाउ फाइनली आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पर? a स्क्वायर एंड हाफ, ये पावर हाफ तो a हो जाएगा, ये यहाँ पे a स्क्वायर कॉमन, पावर हाफ a, यहाँ से भी ये कॉमन, यहाँ से भी ये कॉमन, सो ये आउटसाइड, -π/4 टू π/4।
क्लियर? 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा पावर हाफ माइनस 1। क्लियर है कि नहीं? देखो इस लाइन के बाद ये लाइन क्लियर है ना? कॉमन आ गया, ये बाहर आ गया। 1 प्लस कॉस 2 थीटा पावर हाफ माइनस 1 का पावर हाफ, सो 1। ओके, अब क्या होगा? इंटीग्रेशन पता है 1 प्लस कॉस 2 इक्वल टू क्या होता है? माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4। यहां पर 1 प्लस कॉस 2 थीटा मीन्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा पावर हाफ माइनस 1। ये नाउ a and also here cos theta, this total function is a function of cos. Cos means even, this is even function, so minus a to a you can write 2 times of 0 to pi by 4, and here root 2 cos theta or 2 and half minus 1. This is the integration, simple integration. Cos theta means what? Cos theta का integration क्या होता है? 0 to pi by 4. This is the answer. Okay, final answer क्या होना है? Cos pi by 4. Just write down answer. Okay, root 2 into sin pi by 4 means what? 1 by root 2 minus theta pi by 4. This is first value. Second value will be 0. Theta 0, sin theta 0. This is the answer. 2a 1 minus pi by 4. This is final answer. हो गया? इंटीग्रेशन समझ में आया कि नहीं ये वाला? हेलो सब लोगों को? यस सर। हाँ, बहुत सिंपल है। 3 क्वेश्चन किया पोलर कोऑर्डिनेट से रिलेटेड। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी, बिकॉज अभी कितना मिनट हुआ है पढ़ा रहे, कोई डिस्टर्बेंस आया क्या बीच में? क्यों? हेलो, सब लोग थक गए हो क्या? तुम लोग का जो टाइम टेबल होता है वो कितने घंटे का है? ये बताओ, टाइम टेबल कितने घंटे का है? 2 आवर 2 आवर का है ना? तो अभी तो 1 घंटा 5-7 मिनट हुआ है कि नहीं? अब 2 घंटा पढ़ना चाहिए। ओके, बट मैं नेक्स्ट टॉपिक आई विल स्टार्ट। ओके, स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट टॉपिक, जरूरी है ना? सो ये क्लियर हुआ, ये 3 क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट टॉपिक होगा, सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक क्या है पता है? क्या है बोलो? नेक्स्ट टॉपिक ट्रिपल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। अभी टॉपिक क्या आ गया तुम्हारे सामने? टॉपिक बदल गया ना अभी? यस सर। क्या लिखा है? चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बता रहा हूं। 2 डायमेंशनल प्लेन मींस कार्टेशियन फॉर्म में ऑर्डर चेंज करना। मैं असाइनमेंट तैयार कर लिया हूं, आज असाइनमेंट दूंगा। 5 दिन में करके मेरे को भेजना है। 15 क्वेश्चन है। ओके, आज नाइट को भेज दूंगा असाइनमेंट। ये जितना पढ़ा हूं इसी में से है। एंड ये जो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल। बिकॉज चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, just in the previous class we have already discussed whether we integrate with respect to first xx and then y, or whether we integrate first with respect to y and then with respect to x. किसके पास इस रेस्पेक्ट में पहले करना चाहते हो?
जो डिस्कशन प्रीवियस क्लास में हुआ ना, उसी में से मैं पूछ रहा हूं। ये बताओ कि y के रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करना है तो कौन सा स्ट्रिप से लिमिट निकालना चाहिए कार्टेशियन में? कार्टेशियन फॉर्म में ही दो स्ट्रिप लेते थे, वर्टिकल स्ट्रिप या तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। इफ वी टेक वर्टिकल स्ट्रिप, इफ वी टेक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, तो क्या लिमिट मिलता है? मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि पहले हमको y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो स्ट्रिप कौन सा लेना चाहिए कि लिमिट वही वाला आ जाए? वर्टिकल। जब वर्टिकल लेते हैं स्ट्रिप तो लिमिट किसका मिलता है? वर्टिकल मीन्स y, वर्टिकल मीन्स y। जब वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं तो y का लिमिट मिलता है, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होना है पहले। ये तो बताया था मैं, कितनी बार बताया था। ये देखो, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का मीनिंग यही है, इसको समझना है अच्छे से। समझ में आया भाई? अगर वर्टिकल स्ट्रिप हमने लिया, यस सर, मतलब y के पैरेलल स्ट्रिप लिया तो y का लिमिट आया, y के रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट होगा। सिमिलरली x के साथ हॉरिजॉन्टल लिया तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट पहले होगा। अब अगर लिमिट दिया है, सपोज वी आर गिवन लाइक दिस 0 to 1 एंड 0 to x, और यहाँ पर फंक्शन है और यहाँ पर लिखा है d, क्या लिखना चाहिए? यहाँ पर जो नोटेशन हमने बताया था उस नोटेशन के हिसाब से यहाँ क्या लिखना चाहिए? dy एंड ds, ये लिखना चाहिए ना। ये ऐसा था ना। ये जो लिमिट है, किसका लिमिट है? ये x, y का लिमिट है, मतलब वर्टिकल स्ट्रिप से आया लिमिट। ये अगर y का लिमिट है तो वर्टिकल स्ट्रिप से y लिमिट आया, वर्टिकल स्ट्रिप से लिमिट आया, दैट मींस फर्स्ट इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y। ये गिवन इंटीग्रल था, मतलब इस इंटीग्रल को अगर आप सॉल्व करना चाहोगे तो पहले किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे? y के रेस्पेक्ट में इसका, एंड देन x के रेस्पेक्ट में। बट हम कुछ और चाहते हैं कि इंटीग्रेट करना चाहते हैं पहले x के रेस्पेक्ट में, तो हो नहीं सकता। और x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो कौन सा स्ट्रिप लेना चाहिए? हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेना चाहिए। तो पहले हमको ऑर्डर को चेंज करना है। ऑर्डर को चेंज करेंगे तो लिमिट चेंज हो जाएगा, और ऑर्डर चेंज करने के लिए लिमिट चेंज हो जाएगा। इसके लिए हम स्ट्रिप बदलेंगे। ये आया था वर्टिकल स्ट्रिप से, हमको इसको चेंज करना है और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से लिमिट लेना है। अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा? पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम बनाने के लिए बाउंड्री कहाँ से मिलेगी? बाउंड्री तो ये दिया हुआ है, ये सब जो दिया हुआ है, चार लिमिट, यही तो बाउंड्री होती है। रीजन ऑफ इंटीग्रेशन वर्टिकल स्ट्रिप से हमने लिमिट लिखा था ये, तो यहाँ से हम रीजन लिख सकते हैं। यहाँ से रीजन कैसे लिखेंगे? ये किसका लिमिट है? x का। तो x इक्वल टू 0 है लोअर लिमिट, x इक्वल टू 1 है अपर लिमिट। ये किसका है? y का लिमिट है। y इक्वल टू 0 है ना, y इक्वल टू x है। ये हो गया बाउंड्री। दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन बाउंडेड। इसी से लिखना है और फिर इससे डायग्राम बनाना है, फिर इससे डायग्राम बनाना है। उस डायग्राम में अगर वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे तो यही लिमिट मिलेगा, क्योंकि वर्टिकल से तो आया है। हमको इसका ऑर्डर को चेंज करना है, मतलब यहां पर ऐसा आएगा, dx आएगा पहले फिर dy। ये ऑर्डर चेंज होगा तो लिमिट भी चेंज हो जाएगा। तो इस जब डायग्राम बनेगा, उस डायग्राम में फिर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेना है, उस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से फिर लिमिट निकाल के रखना है। दैट इज द चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है? समझ में आया? सिंपल सा डिस्कशन है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। यस सर। अब देखो इसका बेनिफिट क्या है। सो टेक ये क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिख रहा है अभी? हेलो, क्वेश्चन दिख रहा है सबको? रीड करो, क्या लिखा है? क्या लिखा है?
evaluate the integral by changing the order of integration ना। evaluate the ये बोल दिया कि ऑर्डर चेंज करके सॉल्व करो, ऑर्डर चेंज करके सॉल्व करने बोला ना। अब ऑर्डर चेंज हम नहीं करते हैं और सॉल्व करने बोलते हैं। और क्या लिखा है यहाँ पर, dx dy dx। वैसे इसमें जो संबल है ना वो x2 है क्या, लिमिट x2 है क्या, लिमिट x2 है ना, x2 इंफिनिटी है। और इसमें dx dy लिखा हुआ है। ये कई वेरिएबल लिमिट में वैसे आगे पीछे लिखने से दिक्कत नहीं होता है, बिकॉज ये पता है कि ये किसका लिमिट है, ये x है तो y का लिमिट है, तो पहले किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा। अब देखो क्या आवाज आ रहा है, क्या होगा, किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होना है पहले, y के रेस्पेक्ट में। इसको अगर आप सॉल्व करना चाहोगे अभी तो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर। किसी का माइक डिस्टर्ब कर रहा है। ये इसको इंटीग्रेट करना चाहेंगे तो पहले y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो कर सकते हो क्या, e⁻y अपन y, इसका इंटीग्रेशन करना है y के रेस्पेक्ट में, हो पाएगा। कोई टेक्निक है e⁻y अपन y को इंटीग्रेट करने का, बहुत दिक्कत जाएगा, सॉल्व होगा ही नहीं। कैन यू इंटीग्रेट इट। एक इंटीग्रेशन है, सिंपल इंटीग्रेशन e⁻x अपन x, इसको इंटीग्रेट करना है। क्या पॉसिबिलिटी है, कोई मेथड है, बहुत इम्पॉसिबल है, सॉल्व करना बहुत इम्पॉसिबल है। तो ऐसे केस में डबल इंटीग्रेशन अगर होता है तो ऑर्डर चेंज करके देखते हैं, इजीली सॉल्व हो जाता है। क्लियर है। ये इंटीग्रल को आप सॉल्व करना चाहोगे ना, सॉल्व नहीं होगा, तो इसका ऑर्डर चेंज करना है। ये जो हमारा इंटीग्रेशन दिया हुआ है इसको ऑर्डर चेंज करना है। सो ऑर्डर चेंज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द रीजन इन द गिवन इंटीग्रल। ओके, सो ये क्वेश्चन दिया है, सो योर सॉल्यूशन the reason of integration in given integral is bounded by, एक एक करके चारों इक्वेशन बताओ, टेल मी। लिमिट जो इंटीग्रल दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, इसमें किसका लिमिट है, ऐसे x का लिमिट क्या है, x का लोअर लिमिट, zero, अपर लिमिट, अपर लिमिट इंफिनिटी, y का लोअर लिमिट x, अपर लिमिट इंफिनिटी। ये जो इंटीग्रल दिया होगा उसी से रीजन को लिखना है पहले। द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इन द गिवन इंटीग्रल इज बाउंडेड बाय दिस लाइन। यहाँ सब कोई लाइन है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है। अगर कर्व होता है, कुछ और होता है तो उसका भी डायग्राम बनाते हैं। अब लाइन है, चारों लाइन को बनाते हैं। ओके, सो ड्रॉ द डायग्राम। दिस इज x axis and this is y axis. Now x equals to 0, you know x equals to 0 तो ये है ना लाइन, ये लाइन x equal to 0 है, y axis x equal to 0, x equal to infinity कहाँ पर है लाइन, at infinite distance है ना, at x equal to infinite, ये इन्फाइनाइट डिस्टेंस पे लाइन, ऐसा एक इन्फाइनाइट डिस्टेंस पे लाइन है। क्लियर। नाउ y इक्वल टू x, स्ट्रेट लाइन, 45 डिग्री एंगल वाला स्ट्रेट लाइन है ना, ये लाइन, दिस इज
y इक्वल्स टू, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, और दिस लाइन इज व्हाट, y इक्वल्स टू x, this line is y equals to x and y equals to infinite. This is also infinite distance. Y equals to infinity. Okay? Y equals to infinity. Infinite distance पे लाइन है, y का डिस्टेंस इनफाइनाइट, x का डिस्टेंस इनफाइनाइट, y इक्वल टू x, x इक्वल टू 0. Which part is the region of integration? कौन सा पार्ट है इसमें? ये चारों लाइन से बाउंडेड कौन सा जगह है? ये जगह है, ये जगह है, अपर पार्ट, ये लोअर पार्ट, कौन सा पार्ट है? लोअर का, ये वाला पार्ट है ना, ये नहीं है ना, क्योंकि ये लाइन नहीं है, अपर पार्ट, ये तो ओपन हो जा रहा है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये वाला पार्ट. ओके, सो इसको यहाँ बनाते हैं हम, है ना, y इक्वल्स टू इन्फिनिटी, ये वाला पार्ट. ये तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे x की वैल्यू है. ओके, नाउ जो क्वेश्चन गिवन है उसमें कौन से स्टेप से लिमिट आया है? कौन से स्टेप से लिमिट आया है? लिमिट कौन से स्टेप से आया हुआ है गिवन इंटीग्रल में? जो क्वेश्चन दिया उसको देखो, वर्टिकल से आया है. तो अगर ऑर्डर चेंज करना है तो हमको क्या लेना पड़ेगा? वर्टिकल से लिमिट आया है, ऑर्डर चेंज करना है तो उल्टा लेना है, हॉरिजॉन्टल लेना है. और हॉरिजॉन्टल लेना है मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप लेना है. और ये स्ट्रिप लेते समय एक चीज और ध्यान देना है, जैसे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेने से जो गिवन लिमिट है उसका चेंज हो गया आएगा फिर, बिकॉज वर्टिकल से तो लिमिट आया हुआ वो तो गिवन है. हॉरिजॉन्टल लूंगा इसमें तो उसका ऑपोजिट ऑर्डर का लिमिट आएगा. क्लियर है? तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे पी के. टू चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन द गिवन इंटीग्रल टेक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप पी के. अब ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप जो यहां से यहां तक मूव करेगा तो ये कवर होगा, और इसको कवर करने के लिए अब दिख रहा है कि एक लाइन यहां है, एक लाइन यहां है, इसके बीच में रीजन है, तो सिंगल स्ट्रिप इज सफिशिएंट. सो टू चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन we take horizontal strip PQ, then new limits will be new limit. इससे स्ट्रिप से लिमिट कैसे निकलता है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिया तो पहले x का लिमिट आएगा, कंडीशन लोअर लिमिट फ्रॉम p, अपर लिमिट फ्रॉम q. सो व्हाट विल बी द लिमिट ऑफ x? क्या होना है? x का लोअर लिमिट 0 टू here x equal to y, 0 to y, 0 to y and x, then y यहां से यहां तक स्लाइड करना है 0 टू इंफिनिटी. ये न्यू लिमिट है. सो वी गेट गिवन इंटीग्रल 0 to infinity x to infinity e to the power minus y upon y dx dy equals to 0 to infinity y to 0 to infinity, not 0 to y, sorry, 0 to y e to the power minus y upon y dx dy.
लिमिट चेंज हो गया। पहले कांस्टेंट लिमिट 0 टू इन्फिनिटी किसके लिए है? y के लिए। फिर x की लिमिट 0 टू y, x 0 टू y, ये x का लिमिट है, ये x का लिमिट है, यहां पर x लिखा हुआ है, x का लिमिट है ये। नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x। जब x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो ये कांस्टेंट है, सो वी कैन राइट लाइक दिस 0 टू इन्फिनिटी e to the power minus y upon y, e to the power minus y upon y. When you integrate with respect to x, it will be constant, so taken outside 1 into dx integration with respect to x limit 0 to y, x 0 to y dy। फर्स्ट x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हुआ तो क्या बन गया? x का लिमिट 0 टू y, और ये कांस्टेंट है, सो इसको बाहर रखो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? टेल मी, बोलो क्या होगा? y माइनस 0 मतलब y आएगा, y कैंसिल हो जाएगा, e to the power minus y बचेगा बस, e to the power minus y dy। नाउ इट्स वैल्यू विल बी व्हाट? पता है ना इसके वैल्यू क्या होता है? इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होता है बताओ? माइनस e to the power minus माइनस e to the power माइनस e to the power माइनस y में लिमिट लगना है 0 टू इंफिनिटी। e to the power समथिंग पावर नेगेटिव पावर अगर है तो उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे ले जाना है, तो 1 अपॉन e to the power y होगा, और y के जगह इन्फिनिटी रखोगे, 1 अपॉन e to the power इन्फिनिटी, 1 अपॉन e to the power इन्फिनिटी मींस 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 upon infinity means 0. So when we put or tending value of this as y tending to infinity, so value क्या होगा? 0 होगा। and 0 के केस में y equals to 0 तो e to the power 0 1, so 1 and this is minus sign also second time, so minus sign minus plus plus equal to 1, so this integral is equals to value is 1, this is the answer। ओके, उसमें लिमिट रखोगे तो 1 आएगा, 1। सो क्या किया हमने इसमें? ऑर्डर चेंज किया तो इंटीग्रल सॉल्व हो गया। सो लॉन्ग क्वेश्चन रहता है उसमें भी ऑर्डर चेंज करके सॉल्व कर सकते हैं। जब भी कोई डबल इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो ऑर्डर चेंज करेंगे तो इंटीग्रल सॉल्व करना इजी होगा। ओके, और ऑर्डर चेंजिंग क्या टेक्निक है ऑर्डर चेंज करने का? ऑर्डर चेंज करने का क्या टेक्निक है? जस्ट फॉलो द लिमिट्स ऑफ द गिवन इंटीग्रल। गिवन इंटीग्रल को देखो, लिमिट को, अगर वो लिमिट वर्टिकल स्ट्रिप से आया तो हमको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेना है और न्यू लिमिट निकाल देना है। अगर रीजन को डिवाइड करना पड़े तो भी डिवाइड करेंगे हम। क्लियर है? तो पहले जो गिवन इंटीग्रल है उसका लिमिट्स लिख लेना है, फिर उसका डायग्राम बनाना है, और जो स्ट्रिप से लिमिट आया उसका ऑपोजिट वाला स्ट्रिप लेना है और लिमिट निकाल देना है, एंड देन यू कैन सॉल्व। तो समझ में आया कि नहीं? ऑर्डर ऑफ चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। हेलो, हेलो, हेलो। Yes, sir. इंटरनेट थोड़ा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था अभी, है ना? ये बोल रहा था कि आज जो पढ़ाया हमने समझ में आया कि नहीं? सर एक बार नीचे वाला सॉल्व करके बताइए। यस सर आया। कौन सा नीचे वाला? ये जो भी किया हुआ इसको? यस सर, यस सर। क्या इस जगह को? 1 कैसे आया? हाँ, 1 कैसे आया यहाँ पर देखो। यस सर। ओके, वो लिमिट ये समझ में आया? ये वहां तक तो समझ में आ गया ना? माइनस e to the power माइनस y, इसमें लिमिट लगाना है 0 टू
इंफिनिटी, यही ना। अब ये माइनस साइन है, इस माइनस साइन को तो बाहर भी लिख सकते हैं ना, तो लिमिट लगेगा e टू द पावर माइनस वाई में 0 टू इंफिनिटी। क्लियर है? अब यहां पर जो माइनस साइन है उसके बाद क्या होता है, इंफिनिटिव मीन्स यू कैनॉट पुट डायरेक्ट वैल्यू एज इंफिनिटिव। तो इंफिनिटिव एज ए लिमिटिंग वैल्यू होता है, जैसे e टू द पावर माइनस इंफिनिटी वाई है ना, e टू द पावर माइनस इंफिनिटी अगर लिखा भी जाए तो समथिंग पावर नेगेटिव, उसको सॉल्व करने के लिए ना उसको पॉजिटिव पावर बना लेना है इंफिनिटिव के केस में, टेंडिंग वैल्यू के केस में। सो इसको 1 अपॉन e टू द पावर y लिख सकते थे, उसके बाद 1 अपॉन e टू द पावर इंफिनिटी लिख सकते थे। 1 e यू नो e इक्वल टू व्हाट, e इक्वल टू क्या होता है 2.3 समथिंग ऐसा होता है। यू e की वैल्यू ग्रेटर देन 1 वैल्यू है e की वैल्यू, और e की पावर को इंक्रीज करते जा रहे हैं। 1 से ग्रेटर वैल्यू के पावर को बढ़ाओगे तो वैल्यू इंक्रीज होता है। यहां पर e के पावर इंफिनिटिव है, मतलब इंक्रीज हो रहा है पावर, तो ये भी इंक्रीज हो जाएगा। कहां तक, कितना पावर इंक्रीज हो रहा है, इन्फिनिटी तक इंक्रीज हो रहा है, तो ये इंफिनिटी हो जाएगा, मीन्स 1 बाई इंफिनिटी, ये हो जाएगा 0, 1 बाई इंफिनिटी 0। सो फर्स्ट वैल्यू विल बी 0 माइनस सेकेंड वैल्यू e टू द पावर माइनस 0, मतलब e टू द पावर 0 1 दिस इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस प्लस 1। अब क्लियर, समझ में आया? हाँ, तो इसी टाइप से है। क्या बोले? हेलो, इसमें e टू द पावर इंफिनिटी, यहां पर क्या ये लिमिट है ना, यहाँ यहाँ से ये देखो, ये इंटीग्रेशन था, इसका जब हमने लिमिट चेंज किया, मतलब ऑर्डर चेंज किया, तो ये देखो यहाँ x था y के रेस्पेक्ट में फर्स्ट लिमिट, न्यू लिमिट ये है, इसको अप्लाई कर दिया, ये लिमिट y आ गया, मतलब ये x के रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट होना है। अब दिस इज लिमिट ऑफ x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो y तो एज ए ट्रीट कांस्टेंट, सो यू कैन टेक आउटसाइड, सो आउटसाइड में रखा, और 1 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x क्या होगा, x होगा, और इसमें लिमिट लगेगा 0 टू y, फिर 0 टू y लिमिट लगाया, तो यहाँ पर लिमिट लगाओगे तो ये y माइनस 0, एक बार y रखोगे एक बार 0 रखोगे, y माइनस 0 y, ये y और ये y कैंसिल हो गया, e टू द पावर माइनस y बचा। इस e टू द पावर माइनस y का इंटीग्रेशन वो होता है जो लिखा हूँ, यस सर, उसमें लिमिट लगाया तो 1। यस, क्लियर ना? ओके, तो यस सर, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन और भी करूंगा नेक्स्ट टाइम न्यू टॉपिक के साथ। तो समझ में आया ना आज? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. अरे मैं यस सर, आज भूल जाऊंगा मैं Yes, sir. अटेंडेंस ले लेता हूँ। और एक चीज़ और ये बता रहा था कि जो एक्चुअल में मैं पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर, हाँ, Yes, sir. ये सबका वीडियो Yes, sir. ये सबका वीडियो भी बन जाएगा, मैं डाल भी दूंगा बाद में वीडियो यूट्यूब में, देखना हो उसको रिपीट कर लेना है, देख भी लेना है। और कुछ स्पेशल क्लास लेने के लिए सोच रहा हूँ, अब देखो इधर नेट में गड़बड़ कर देगा तो दिखा भी, नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, है ना। सो क्लास तो मैं रोज लेता रहूँगा, अभी तो आज 1.5 घंटा हो ही गया लगभग। ओके, 1 से 1.5 घंटा ऐसे क्लास ले लेंगे, बाकी और नेक्स्ट वीक से एक्स्ट्रा क्लास भी लूँगा, मतलब एक्स्ट्रा क्लास तुम लोग परेशान हो जाओगे। देखो पढ़ने वाले लोग 2 घंटे का एक क्लास है, तो हम 1.5 घंटा यहाँ लेंगे, 1 घंटा और पढ़ाएंगे यूट्यूब में, है ना, उसको भी पढ़ना है। उसमें क्या बात नहीं कर पाएंगे, आप लिख के बात कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं? यस सर, यस सर, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन Yes, sir. यस सर, जो असाइनमेंट दूंगा ना, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कर दिए रहेंगे हम लोग, है ना, नेक्स्ट अलग टाइम में, क्योंकि ये कंटिन्यूसली गूगल मीट में 2-2.5 घंटा क्लास लेना मुश्किल है। क्लास लूंगा भी तो तुम लोग परेशान हो जाओगे। सो 1 से 1.5 घंटे का क्लास इसी टाइप से डायरेक्ट ले लेंगे हम, ठीक है ना? क्लियर है ना? यस सर,
Yes, sir. ओके, Yes, sir. सो Yes, sir. आज मीटिंग क्लोज करते हैं. ओके, ठीक है ना? Thank you, sir. ओके Thank you, sir. ओके Thank you, sir. ओके Thank you, sir. ओके.